درسقرآن.com کے پروگرام تجزیے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج بڑے اہم موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی۔ دوسرا ایشو ہے اسلام آباد میں دارالحکومت میں 70 سال 80 سال قدیم ترین مساجد کیوں گرائی جا رہی ہیں۔ اور تیسرا موضوع یہ ہوگا کہ بھائی پاکستان میں دیکھ رہے کئی تباہی آ رہی ہیں، کئی مساجد گرائی جا رہی ہیں، قتل و غارت گری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، یہی کچھ ہے یا اس میں کوئی خیر کی بات بھی ہے، کوئی مثبت بات بھی ہے یا نہیں؟ یہ تین موضوعات ہوں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ تجزیے میں موجود ہوں گے معروف کالم نگار، ایڈیٹر ہفت روزہ شریعہ اینڈ بزنس، اور اسی طرح مختلف کتابوں کے مصنف اور تحقیقی مقالات لکھنے والے جو دنیا بھر میں جو ہونے والی اہم ریسرچ ہوتی ہے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں، مفتی عبد المنعم فائز صاحب۔ فائز صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ آج تو آپ بڑی اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، اور لگ رہے ہیں کہ آپ بارش میں نہا کر آئے ابھی۔ ہاں ایسے ہی۔ تو یہ جو بارشیں ہوئی ہیں، جو پہلا موضوع ہے، اس سے سیلاب آیا ہے، طوفانی بارش آئی ہے، یہ ایک دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، نہیں تھا کسی تو کو۔ یہ اچانک کیسے ہوا کیا واقعہ دنیا کیا؟ میں موسمیاتی تبدیلی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا جو بین الاقوامی کلائمیٹ چینج میں جو کردار ہے پاکستان کی فیکٹریوں کا، یا فضلہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ہم ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے کوئی بھی ملک، تو اس کا کردار ہوتا ہے بین الاقوامی موسم کی تبدیلی میں، کلائمیٹ چینج میں۔ تو پاکستان کا اس میں حصہ جو ہے 1% سے بھی کم ہے، 1% ہے۔ لیکن دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ وجہ یعنی دنیا میں کسی بھی جگہ فیکٹریاں چلتی ہیں، جو ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، پلاسٹک ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، روزانہ پوری دنیا کے ملک مل کر فضلہ یا ویسٹ جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ہر ملک کو اس کے تناسب سے، مثلا جیسے چائنا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی وہاں پہ ہے، تو ان کا سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے فطرت یا کلائمیٹ جو ہے وہ ملک کو اس کے حصے کی بجائے وہ اپنے جو اس کا ایکو سسٹم ہے، جو اس کا نظام ہے، اس کے مطابق افیکٹ کرتا ہے۔ تو ان میں جو پاکستان کا حصہ ہے ایسا، یہ حصہ ایسا ہے جہاں سب سے زیادہ سیلاب ہوئے ہیں، طوفان آئے ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے تباہی جو دنیا میں جہاں پر سب سے زیادہ جن ملکوں میں آئی ہے ان میں سر فہرست یعنی فرسٹ نمبر پہ پاکستان ہے۔ سوال یہی ہے نا، کیوں آخر کیوں پاکستان ہی کیوں؟ پاکستان ہی کیوں؟ پاکستان اس وجہ سے کہ دنیا کے کسی نہ کسی ریجن کے اوپر تو یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن جو پاکستان کے ارد گرد موسمیاتی جغرافیائی جو حدود بنتی ہیں، یہاں پہ ہوا کا دباؤ جو پریشر بنتا ہے، وہ تو پوری دنیا میں ایک کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو، تو وہ سب پاکستان کے ریجن میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ ممکن ہے آگے جا کر یہ کہیں اور شفٹ ہو جائے۔ نہیں ایسا تو ہوتا نا، آج سائنس کا دور ہے، 50 سال بعد کیا ہونے والا ہے، موسمی تبدیلیاں کیا ہے، سمندر کی تہ تک ناپ لی ہے، دنیا کا چپا چپا ناپا جا سکتا ہے، خلا میں دنیا پہنچ گئی ہے، فضا سے نکل کے خزاں میں چل گئی ہے، وہاں پر کمندوں پر سارے، ایسے میں کہ یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی؟ موسمیاتی تبدیلی کا کوئی حل نہیں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جو ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ جب دنیا کے اندر کاربن پروڈیوس ہوتا ہے، جب دنیا کے اندر دھواں فضا کے اندر جاتا ہے، جب دنیا کے اندر کوئلہ جلتا ہے، جب دنیا کے اندر ویسٹ کسی بھی شکل کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، تو آپ کو اگر انٹرنیٹ کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو رپورٹس ملتی ہیں کہ روزانہ جو پوری دنیا مل کر ویسٹ پروڈیوس کر رہی ہے، یعنی فضلہ بنا رہی ہے، یہ جو کچرا ہم پروڈیوس کرتے ہیں، پلاسٹک ہم گراتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے گھروں سے کچرا نکلتا ہے، اس کچرے نے کہاں پہ جا کے ڈمپ ہونا ہے؟ یا تو یہ جائے گا اور اس کو آپ آگ لگا دیں گے، آگ لگنے کے بعد یہ سارا کہاں پر جائے گا؟ فضا میں چلا جائے گا، یا پھر آپ اس کو سمندر میں دیں گے سمندر میں، تو سمندر سے کہاں پر جائے گا؟ بخارات بن کے پھر آپ کی فضا میں جانا ہے، یعنی الٹیمیٹلی اس نے آپ کی فضا میں جانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب وہ فضا میں چلا جاتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی بارڈر یعنی ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پاکستان کی فضا کے اندر کلاؤڈ بسٹ کو روک سکیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ملک ایسے ہیں جو اپنے ہاں درخت اگا لیتے ہیں، اور اس کا ایک پیرامیٹر دنیا کے اندر
इंट्रोड्यूस हुआ है कि मसलन 1 मीटर के अंदर आपने 10 दरख्त लगाने हैं। ये दुनिया का उसूल एक है। कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 1 किलोमीटर के अंदर 10 दरख्त होने चाहिए। पाकिस्तान में 10 के बजाय 4 हैं और तेजी से कम होते चले जा रहे हैं। अच्छा, सूबे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे बड़ी तेजी से दरख्त काटे जा बल्कि रहे हैं। अभी मेरे पास खबर है, ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि 18% जंगलात कम हुए, कम हो रहे हैं और दुनिया सारी इसके ऊपर आ रही है कि आप अपने जंगलात को बढ़ाएं। मसलन आप अमेरिका के अंदर, यूरोप में किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएं, किसी भी जो डेवलप कंट्री है उसमें चले जाएं, वहां आपको हर घर के साथ में एक बागीचा मिलता है, वहां पे जुगनू आते हैं। हमने बचपन से जुगनू देखा ही नहीं, आपने देखा बचपन के बाद से? सुना ही है। भी जाना हो तो कहीं गांव में जाकर कहीं कोई जुगनू नजर आता है कि बहुत कोई रिमोट एरिया हो, वहां पे घर ना वहां, और जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे हर घर के साथ में इतना बागीचा होता है बड़ा कि उसमें जुगनू उनको रोजाना नजर आते हैं। तो ये अमेरिका में है, यही चाइना के अंदर है, दुनिया के तरक्की याफ्ता लेकिन मुल्क में। उसके बावजूद देखिए सुनामी हर जगह आते हैं, जी। अमेरिका में भी तूफान आए, बड़े बड़े सैलाब आए, लेकिन मसला है कि देखें, आप तारीख पढ़ें, आप तो रिसर्च निकाल के लाए, मुझे दिखा रहे थे कि दुनिया भर में बड़े बड़े सुनामी, तबाही, ये सारे आते हैं, लेकिन वो वहां इतना नुकसान नहीं होता। जी। या नुकसान होता है तो इंसानी नुकसान नहीं होता, जानी नुकसान नहीं होता। नुकसान में फिर देखें 2 बड़े मसले आते हैं। सबसे पहला मसला ये कि उस नुकसान के तदारुक करने के लिए जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कितनी जबरदस्त है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो शोबा है वो सिवाय इसके कि जब कोई वाकया हो जाता है तो उसके बाद वहां पे थोड़ी बहुत वो कार्रवाइयां करते हैं, इसके अलावा नहीं नजर आता। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर जो हैं लोग और सिस्टम्स इतने डेवलप नहीं है। अब पाकिस्तान में नालों की जगहों के ऊपर घर बने हुए, होटल बने हुए, पहाड़ जो उनके ऐसी जगह, बैंक बने हुए। हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसा शहर जो आपको, यानी जो जिन इलाकों की भी आप बात कर रहे हैं केपीके के, खुसूसन ये जो बुनेर है, शांगला है, इनके करीब के जो इलाके, लोअर दीर, अपर दीर, ये 4 बड़े इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं इस वक्त में। इन चारों के अंदर जहां पे ये सैलाब आए उनमें से अक्सर जगहों के ऊपर नालों की जगहों पे घर बने हुए हैं, नालों की जगहों के ऊपर हॉस्पिटल बने हुए हैं, नालों की जगह के ऊपर होटल बने हुए हैं। तो और उन्हीं इलाकों में ही ये सैलाब आए। और आप वहां के इलाकों के लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है वो बता रहे हैं कि जी ये फलां इलाका था, मुझे फलां ने मना भी किया कि भाई इस इलाके में जगह ना खरीदना, लेकिन ये सस्ती बिक रही थी, खरीदी जा रही। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान के ये जो एरियाज हैं जहाँ पर ये वाकयात पेश आ रहे हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं कि वो इस तरह के डिजास्टर को मैनेजमेंट के जरिए संभाल सकें। तीसरे नंबर पे जब कोई डिजास्टर हो भी जाता है तो उसके बाद हमारा रद्द अमल क्या होता है? क्या हमारी पूरी हुकूमती मशीनरी उस इलाके को बहाल करने पर लगती है? मेरे ख्याल में नहीं लगती है, क्योंकि अब ये जिन इलाकों में तकरीबन 20 से 40 अरब तक का नुकसान है जो हो चुका है बोनेर के अंदर, सिर्फ जो बोनेर में तबाही आई है, क्लाउड बस्ट हुआ है, उसके नतीजे में ये जो घर गिरे हैं, वहाँ पे स्कूल गिरे हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं, हॉस्पिटल तबाह हुए हैं, पुलिस स्टेशन तबाह हो गए हैं। तो इनका जो पहुंचने वाला नुकसान है ये 20 से 40 अरब रुपए का नुकसान है। 40 अरब तो की इतनी बड़ी रकम नहीं है ना। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, उन्होंने फोन करके कहा है हम इमदाद करेंगे। ये इब्तदाई अंदाजा है भाई साहब। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस वक्त में लोगों के शहादतों, हलाकतों की जो इत्तलात आ रही है वो तो 400 के लगभग आ रही है, लेकिन पूरे के पूरे जो BBC ने भी रिपोर्ट दी है तो पूरा एक गांव जिसकी एक आबादी 1000 के करीब थी, उसमें चंद लोग बचे और पूरा गांव मलिया-मेट हो चुका है। तो उसका मतलब जानी नुकसान कहीं ज्यादा मालूम होता है, कहीं ज्यादा। सिर्फ एक, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक गांव की बात कर रहे हैं और उसके साथ के 2 गांव भी इसी तरह ही खत्म हो चुके हैं। अच्छा फाइज साहब, ये बताइए, जब इस तरह की आफात आ जाएं, परेशानी आ जाएं, कुदरती ये चीजें हो जाएं, तो उसमें उसवाए नबवी क्या कहता है? सीरत हमें क्या रहनुमाई करती है? सीरत में भी इसमें रहनुमाई मिलती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इससे बड़ी रहनुमाई मिलती, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहत आया था और मदीना मुनव्वरा पूरा कहत का शिकार रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दौर के अंदर जो किया करके दिखाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ऊपर अच्छा खाना हराम कर लिया, ऑयल, मतलब उस दौर के अंदर तो
पनीर इस्तेमाल किया जाता था, गोश्त इस्तेमाल होता था, पूरे अरसे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने गोश्त का एक टुकड़ा नहीं खाया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने पूरे अरसे में अपने घर के अंदर कोई फल नहीं आने दिया। पूरे अरसे के अंदर उन्होंने रात को आराम नहीं किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने पूरे अरसे के अंदर दिन में चंद घंटे सोते थे, और साहबा कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का रंग इतना बदल गया था, और हम कहते थे कि कहीं इसकी शिद्दत गम से हलाक ना हो जाए। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सारी रात दुआ करते थे अल्लाह के हुजूर कि ये मेरे गुनाहों की सजा तो नहीं मिल गई। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या इक़दाम किए कि पूरे मदीना मुनव्वरा के एक एक बाशिंदे की काउंटिंग की, नंबरिंग की, कि ये आदमी मर्द इतने हैं, ख़वातीन इनकी इतनी हैं, बच्चे इतने हैं। मर्दों को मस्जिद नबवी के अंदर दस्तरखान लगाया, रोज़ाना सुबह शाम का खाना यहाँ पे होगा, और ख़ुद खाना पकाते, खुद खाना पकाने की निगरानी करते थे, और सबको वहाँ पे दस्तरखान पे मिलता। और फिर जो घरों में ख़वातीन और बच्चे जो नहीं आ सकते थे, हर एक के ऊपर उन्होंने नंबर लगाए थे कि इस घर में इतने लोगों का खाना जाएगा, इस घर में इतने लोगों का खाना जाएगा, इस घर में इतने लोगों का जाएगा। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगला काम ये किया कि मिस्र में, शाम में, इराक में वहाँ के जो गवर्नर्स थे उनको खत लिखा और उनको कहा कि हमारी मदद को पहुँचो। और वहाँ से फिर सैकड़ों टन गंदम आई है, खजूरें आई हैं, गल्ला आया है, गोश्त आया है, ऊँट पहुँचे हैं वहाँ से, क्योंकि उस दौर में ऊँट की कुर्बानी करके उसका गोश्त खिलाया जाता था। अच्छा, आपने जो एक बात की, खुद एहतसाबी की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, कहीं मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब सोचने की बात यह है कि यौम आज़ादी पर शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का ट्वीट पढ़ा है आपने? नहीं, वो पुराना ट्वीट था, जो शाज़ शेखुल इस्लाम का ट्वीट है ना, वो 2022 का है। वो लोगों ने अभी दोबारा चलाया, वो ट्वीट सही नहीं है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। और उस मौके पर सुना है कि लोगों ने जो वीडियोस भी चलाई है रक्स और सुरूद की, वो पुरानी थी, इस दफा की नहीं थी, अल्लाह जानता है। लेकिन ये कि मैंने जो एक दो पोस्टें देखी, मेरी तहकीक नहीं है इस पे, लेकिन इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि क्या इस दफा वाकईतन, लेकिन गाना बजाना तो हुआ है, इतनी बात तो हम जानते हैं, तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुरान और हदीस हमें ये बताता है कि एक तो होता है कि आपके अमाल की सजा दुनिया में मिलती है, सही है। दूसरे नंबर पर यह भी होता है कि अल्लाह ताला, बद इंतजामी भी तो गुनाह है ना, करप्शन भी तो गुनाह है, अकरबा परवरी जो हम कर रहे हैं वो भी तो गुनाह है। अपने रिश्तेदारों को वो घर में बैठ के लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, इन सारे इलाकों में आप देखें, और पूरे मुल्क में ये ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग हराम हलाल, हमारे यहाँ जितना मशकूक किस्म का माल खाया जा रहा है, तो ये सारे ट्रेंड मौजूद हैं। और फिर अगले नंबर पे लोगों में कंजूसी कितनी बढ़ गई है, लोगों में आपस में शेयर करना कितना कम हो गया है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर बांट कर खाना, उनकी मदद करना, ये कितना कम हो गया। तो ऐसे जो अल्लाह ताला की तरफ से मैसेजेस होते हैं, ये दोबारा से रिकॉल करना होता है कि अमाल का भी हम मुहासबा करें कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट भी बेहतर करें, फिर गरीबों की मदद भी करें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने करके दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है कि ला अन अमशी मा अखिली फी हाजतिन, कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए घर से बाहर निकलूं, उसके साथ मस्जिद से बाहर निकलूं, तो वो इससे ज़्यादा बेहतर है मिन अन आतकिफ फी हाज़िल मस्जिद इशारा, मस्जिद नबवी में 1 महीना एतिकाफ से ज़्यादा सवाब रखता है। और दूसरा ये भी तो हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान एक जसद वाहिद की तरह है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खैर के काम करना है, मसानिया के जो खैर के काम करने हैं, तकी मसारिया सू, ये बुरी वल आफात वल हलाकात, आफतों से बचाता है। जब सनाउल मारूफ यानी आप नेक काम करते हैं, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला आफतों से आपको बचाता है, तबाहियों से बचाता है, और आपके अंजाम बद से आपको बचाता है। तो पूरी कौम के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये अरबों रुपए का जो नुकसान है, अभी तो वहाँ के क्योंकि डेटा भी आया नहीं है, और रफ्ता रोजाना नई नई खबरें आ रही हैं। लेकिन फाइज साहब, पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है। 2005 में जो कितना बड़ा सिलसिला वो आया था बालाकोट वगैरह में, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के 2 ममालिक ने मिलकर कौम को पूरे उस कौम पे खड़ा कर दिया था, तो जितना नुकसान हुआ था उनका एक किस्म का तदारुक हो गया था। अच्छा, दूसरा हमारा मौजू ये था कि इस्लामाबाद में सुना जा रहा है कि 90 साल पुरानी क़याम पाकिस्तान से पहली जो इतनी कदीम मसाजिद है, इनको शहीद किया गया है, और वजह यह बताई जा रही है कि ये जो पाकिस्तान का नक्शा है, उसमें ये गैर कानूनी बनी हुई थी। देखिए, ये जो
मस्जिद का वाक़या है, इसमें बहुत बड़ी बदइंतज़ामी भी हुई है, हम्म, मिस हैंडलिंग भी हुई है, सियासी इदारों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। हम्म, और असल में जो बात है वो ये कि वहाँ पे मस्जिद भी थी और साथ में पैरेलल मदरसा भी था। था जी, देखिए मदरसे का तो दुनिया में कोई उसूल नहीं है ना, कुरान कहीं भी हदीस का ये मुंतकिल ले जाए, हाँ, कहता है कि आपको इधर ही बनाना है। हम्म, अब वहाँ से अगर आप सिक्योरिटी रीजन है, वहाँ से इंटरनेशनल जो आपके डेलीगेशंस हैं मूव करते हैं, आप वहाँ से हटा कर किसी दूसरे इलाके किस में जगह ले बना दी। और इसकी और कई उसके मिसालें ऊपर हैं, मुज़ाकरात एक जगह चलते मदरसा रहते था, हैं। उन्होंने जगह छोटी और बड़ी जगह पर बड़ा मदरसा बना लिया। रहते, इससे कोई इशू नहीं होता, हम्म, तलबा के लिए कोई इशू नहीं होता, हम्म, पढ़ने वालों के लिए। तो ये उसके ऊपर मुज़ाकरात भी हुए हम्म, और उसको शिफ्ट करने की बात भी हुई। लेकिन उसके साथ में फिर जो जो मस्जिद थी, मस्जिद के बारे में अल्लाह का और कुरान और हदीस जो हम पढ़ते हैं, जो फ़िक़्ह हमें बताती है वो ये है कि जब एक मस्जिद बन जाती तो अल्लाह का घर होता है, वो बैतुल्लाह की बेटी होती है, उस जगह को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म। हाँ, बहुत कोई मतलब इतना बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, फिर जाके मज़हब गैर पे फतवा होता है, नहीं, वो भी जय्यद उलमा कराम जब कहे, उलमाए कराम खुद फैसला करें। यहाँ पर अब मदरसे की मुंतकिली की बात की आड़ में रातों रात मस्जिद को भी शहीद कर दिया, शहीद करके वहां पर पौधे लगा दिए। पौधे लगा दिए। ये बहुत बड़ा जुल्म था और ये बहुत बड़ी गलती थी और बाद में उनको इस्लाह करनी पड़ी। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो उसकी इस्लाह हो रही है, तो अल्लाह करे इस्लाह क्या हो रही है, लोग क्यों ना सुने 50 मसाजिद है जिनको गिराने की लिस्ट जारी हो गई। देखिए वो तो फिर हर मस्जिद के हिसाब से अलग। एक तो सबसे पहली बात तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो 50 मसाजिद की लिस्ट जारी की गई है, सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उलमाए किराम की कमेटी बनाए कि जी मस्जिद का मसला है, मस्जिद का मसला कोई छोटी बात नहीं है, हुकूमतें गिर जाती हैं इसकी वजह से, लोग कत्ल हो जाते हैं, इंसानी जान की हुर्मत कोई मामूली चीज़ है। कल कोई इसी को नहीं, इसका अंजाम तो अबरहा की तरह है ना, जब मसाजिद बैतुल्लाह की बेटियां हैं। तो देखिए अंजाम, मैं कह रहा हूँ कि अंजाम तो अल्लाह का अजाब तो जो आता है वो तो इज्तिमाई आता है। उससे पहले जो लोग मुतनफिर हो रहे हैं, रियासत से मुतनफिर हो रहे हैं, ऐसे लोगों से मुतनफिर हो रहे हैं, इस वाक़े के बाद भी कितनी हाथापाई हुई है, कितने लोगों की बेइज्जतियां हुई हैं, तौकीरियां हुई हैं, वहाँ पे कितने झगड़ों के, लड़ाई के वाक़यात हुए। लेकिन फाइज साहब ये दूसरी तरफ ये भी है ना कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जगह खाली पड़ी है वहाँ मस्जिद बना दें, एक सोसाइटी है उस सोसाइटी पर कब्जा करके। ये गलत चीज़ है कि किस कब्जे की जगह पे कोई नमाज नहीं होती, कब्जे जगह के ऊपर मस्जिद नहीं बनती है, कब्जे की जगह के ऊपर मस्जिद कहलाती नहीं है। लेकिन इसको डिफाइन कौन करेगा? यकतरफा तौर पर आप अपनी चीजें तय करके उसको एक रातों रात असल बात हिकमत अमली और बद इंतजामी है, लोगों को एतमाद में लेकर करें। उलमा कितने साहिब बसीरत उलमा मौजूद हैं इस्लामाबाद में, कितने बड़े बड़े मकातिब फिक्र के उलमा हैं, समझदार हैं, रियासत के मसाइल को समझते हैं, उनको बुलाएं, उनके साथ एक एक केस को डिस्कस करें, मसला हल हो सकता है। जगह हैं जहाँ पे कब्जा हुआ है या जहाँ जेन्युइन मसला है, उन जगहों को बदलने में कोई मसला नहीं, शरई तौर पे कोई मसला नहीं, उलमा भी तैयार होंगे। फैज साहब, कहीं पर बारिश आ रही है, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, कहीं मस्जिदें गिराई जा रही है, कत्ल गारत है, खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बलोचिस्तान में, ये पाकिस्तान में ये सारा है। ये सुबह अखबार पढ़ लो तो कोई खैर की बात भी है, पाकिस्तान में कोई मुस्बत खबर भी है या नहीं है? देखिए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर खबर वो है, खबर की डेफिनेशन पाकिस्तान में आके चेंज हो जाती है, दुबई में चेंज हो जाती है। दुबई में खबर वो होती है जब कोई डेवलपमेंट होती है, उस अगर आप अपने बल्कि पूरी दुनिया में खबर, आप सऊदी अरेबिया के किसी अखबार के अंदर सोशल मीडिया पे सऊदी अरेबिया में होने वाले किसी डिजास्टर की खबर नहीं लगा सकते, अगले दिन आप जेल के अंदर होंगे। पाकिस्तान में इतनी आज़ादी है सहाफ़त को, खबर को, न्यूज़ को, कि वो जो चाहे खबर दे देगा। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 50 सालों में हमारे यहाँ सहाफ़त की डेफिनेशन ये हो गई है कि जब कोई नेगेटिव काम होगा तो खबर बनेगी, पॉजिटिव काम होगा तो वो चापलूसी है, वो आप दूसरे के चापलूसी कर रहे हैं, उससे पैसे लेना चाहते हैं, आप खुशामद है, का मसला है, आपकी खुशामद है। अभी भी आप देख लें, आप आज किसी भी अच्छे काम के ऊपर तारीफ में कॉलम लिख दे, जंग में वो सुहेल वड़ाइच के कॉलम का क्या हाल है आपको पता है? देखें सुहेल वड़ाइच ने अभी कॉलम लिख दिया फौज के हक में, तो एक हंगामा, तूफान है भाई, यही इनके खिलाफ लिख दो, अभी हीरो बन गए। तो पाकिस्तान में लोगों के दिमाग नेगेटिव पे सेट हुए। भाई साहब आप सेट देखे ना, आपके
دادا جب پاکستان میں آئے تھے ان کے پاس کیا تھا, والد کے پاس کیا تھا, آج کیا کچھ ہے. اس وقت کا پاکستان. اور دوسری بات میں کہتا ہوں, پاکستان میں میں نہیں کہتا ہوں, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں, مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب فرماتے ہیں, وہ آپ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں پھر پاکستان میں آ جائیں, پاکستان میں اس سے زیادہ مذہبی آزادی ہے. دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں, اس کا آئین اٹھا کر دیکھیں, پھر پاکستان کا آئین اٹھا کر دیکھیں, پاکستان میں اس سے زیادہ آزادی ہے. آج دنیا کے کسی بھی مذہبی عدالتوں میں چلے جائیں اور پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کو دیکھ لیں, شریعہ پیرنٹ بینچ کو دیکھ لیں, آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان قانونی اعتبار سے دنیا میں سب سے بہترین ملک ہے. اور معاشی لحاظ سے بھی معاشی اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان جو ہے دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہوا ہے. اور پاکستان کا پہلی دفعہ میں ایسا ہوا ہے کہ جی ڈی پی جو ہمارا ہے وہ $400 بلین سے کراس کر گیا ہے. تو اور اگر پاکستان کی ابھی تو ہماری جو ہے بلیک مارکیٹ اتنی ہے, اور جو ہمارے ہاں جو جتنے بھی معیشت ہے نا وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اگر پاکستانی معیشت ڈاکومنٹڈ ہو جائے, پاکستان 1 ٹریلین پہ جی ڈی پی ہمارے پہنچ جائے گا. تو ہم اللہ کا شکر ہے بہت سارے پاکستان میں دیکھو انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے, گاؤں دیہاتوں میں روڈ بن رہے ہیں, بجلی کا نظام بہتر ہو رہا ہے, کوئلہ سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے, ریل بن رہے ہیں, وہ روڈ بن رہے ہیں. تو پاکستان دن بدن بہتری کی طرف جا رہا ہے نا, ترقی کی طرف جا رہا ہے نا. اور دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا ہے, بالکل ایسے مداری سب سے زیادہ یہاں پر ہے, اور نوجوان سب سے زیادہ یہاں پر ہے, اور پوری دنیا میں پاکستانی قوم اپنا لوہا منوا رہی ہے. ابھی اتنی بڑی جو جنگ ہوئی ہے تو یہ کس نے جیتی ہے؟ پاکستان نے الحمدللہ. امریکی صدر کے ساتھ اب دیکھیں پوری دنیا نے مذاکرات کیے, پاکستان نے مذاکرات کیے, پاکستان کے انڈیا نے بھی کیے, بنگلہ دیش نے بھی کیے. پاکستان کے فیور میں آیا کہ نہیں؟ پاکستان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ مل کے پیٹرولیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, معدنیات کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ, اور پاکستان کی فیور میں روزانہ وہ بیان دیتے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ آپ دیکھیں کیا شروع ہوا, ان کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں, 50% تک ٹیرف نافذ کر دیا گیا, پاکستان پہ 19% ہے. دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو فخر محسوس کر رہی ہیں. اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ جو ہم سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہمارے لکھ رہے ہیں, تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کرنے کی فضا ہے. آپ ابھی بھی نیگیٹو کوئی بات لکھ دیں, اس کی فالوئنگ لاکھوں میں ہوگی, پازیٹیو لکھ دیں تو آپ کے اوپر تبرہ کرنے والے لاکھوں میں ہوں گے. لیکن اس ٹرینڈ کو کون بدلے گا؟ بالآخر ہمیں بدلنا ہے نا, میڈیا کو بدلنا ہے, لوگوں کو بدلنا ہے کہ یہاں جو ہونے والی خیر ہے اور اچھے اشاریہ ہیں ان کو آگے بیان کریں. جی ٹھیک ہے ناظرین, آج ہم نے 3 موضوعات پر بات کی. فائز صاحب آخری میں چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام کا اختتام بھی کریں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں اتنی بڑی تباہی آئی ہے, اس میں عام آدمی پر, عام ادارے پر کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ آپ اور ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پورے ملک کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے, پاکستان کے ہر باشندے پہ بنتی ہے, اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے درد کو محسوس کریں, جو ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں. اگر آپ میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر کر سکتے ہیں وہ کریں, لوگوں کو حقائق بتائیں, وہاں پہ جو جا کر ویڈیوز بنا سکتے ہیں وہ بنائیں, تاکہ لوگوں کو حقائق آن گراؤنڈ پتہ چلے کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. ابھی تک تو وہاں کا ڈیٹا یہاں تک نہیں پہنچا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے ہر سیلاب میں کہ پاکستان کے لوگوں نے بڑی جنرس ڈونیشنز دی ہیں. تو اس موقع پر بھی بہت بڑی امداد جانی چاہیے, اور بنیر کے لوگ, شانگلہ کے لوگ, اپر دیر, لوئر دیر, آگے مختلف گلگت بلتستان ہے, کشمیر کے لوگ افیکٹڈ ہیں, جہاں جہاں پہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے وہاں پہ لوگ امداد کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو پتہ چلے کہ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں. تو ان کا ساتھ دینا, ان کی مدد کرنا یہ اسلام کا حکم ہے, دین کا حکم ہے, اخلاقی فریضہ ہے, اور ایک ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے. جی ناظرین, موضوعات تو بہت ہیں, فائز صاحب تو بہت زیادہ تحقیقات کر کے آتے ہیں, معلومات لے کے, لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن ہماری ٹائمنگ چونکہ 15 سے 20 منٹ ہوتی ہے, وہ بھی کوئی زیادہ ہی ہو جاتی ہے, ٹائم پر ہم پورا نہیں کر پاتے. تو دوبارہ ملتے ہیں اگلی نشست میں. یہ پروگرام کیسا لگا, کسی اہم موضوع کی طرف آپ رہنمائی کرنا چاہے تو کمنٹ بار میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com